A 55-year-old man presents to his general practitioner complaining of lack of energy. He has become increasingly tired over the past 18 months. He works as solicitor, means a British lawyer, and describes episodes where he has fallen asleep in his office. He is unable to stay awake after 9:30 p.m. and sleeps through until 7:30 p.m. He finds it difficult to concentrate at work and has stopped playing his weekly game of tennis. He had an episode of depression 10 years ago related to the breakup of his first marriage. He has no current personal problems. He has had no other major illnesses. His brother developed type 1 diabetes at the age of 13. On direct questioning, he has noticed that he has become more constipated but denies any abdominal pain or rectal bleeding. He has put on 8 kg in weight over the past year. On examination, he is overweight. His facial skin is dry and scaly. His pulse is 56 per minute regular and blood pressure is 146 by 88 mm of mercury. Examination of his cardiovascular, respiratory, and abdominal system is unremarkable. Neurological examination was not performed. And the investigations जो आपके सामने हैं इनमें जो सिग्निफिकेंट हमारे पास है हेमोग्लोबिन जो कि 10.3 है एंड क्रिएटिनिन 125 माइक्रोमोल पर लीटर एंड द कोलेस्ट्रॉल इज 6.4 मिलीमोल पर लीटर. और जो रिमेनिंग जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो तमाम नॉर्मल हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई. So the question is, what is the likely diagnosis and how would you further examine, investigate and manage this patient? So I am giving you time to actually think about this scenario and you can solve this. So I hope you have diagnosed this case, and the answer of this case is hypothyroidism. Yes, it is a case of hypothyroidism. सो एक्चुअली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज़म की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं और किस तरह ये डायग्नोसिस हुई है. देखिए, इसकी जो कॉमन कंप्लेन थी वो थी फटीग एंड टायर्डनेस इस पेशेंट में. और ये फटीग एंड टायर्डनेस may be present in the physical illness, may present in the mental illness like depression. And if we compile the differential diagnosis of the fatigue, so it may include cancer, depression, anemia, renal failure, endocrine disorders and other chronic illnesses. So he has also a past history of depression, क्योंकि इसकी फर्स्ट मैरिज का जो ब्रेकअप हुआ था उसकी वजह से ये डिप्रेशन के अंदर भी है. और इसकी जो मेन कंप्लेन थी कि ये रात को सो नहीं पाता और सुबह जो है वो इसकी जल्दी आँख खुल जाती है. तो ये बेसिकली डिप्रेशन में होता है. He is not waking early in the morning and also having difficulty getting to sleep. So actually these are the biological symptoms of severe depression. So हमारे पास दो मेनली डायग्नोसिस आती हैं, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डिप्रेशन. So what are the factors which are actually leading to the hypothyroidism? Insidious onset of fatigue, difficulty concentrating, increased somnolence, constipation and weight gain. These are basically not the features of depression obviously. So these are the factors which are leading to the diagnosis of hypothyroidism. सो अब मैं आपको बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि किस तरह हम हाइपोथायरॉयडिज़म के पेशेंट को देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. क्योंकि इसके दूसरे क्वेश्चन में था कि हाउ टू फिज़िकली एग्जामाइन, यानी फर्दर एग्जामिनेशन हम करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन वो किस तरह प्रोसीड करेंगे, इन्वेस्टिगेट और मैनेज किस तरह करेंगे कि हमारी डायग्नोसिस हाइपोथायरॉयडिज़म बन जाए. देखिए, हाइपोथायरॉयडिज़म की डायग्नोसिस बनाने के लिए पहली आपको हिस्ट्री से क्या क्लू मिलेगा. देखें, अगर आपको पेशेंट सस्पेक्टेड लग रहा है हाइपोथायरॉयडिज़म का, सो देयर मस्ट बी पास्ट मेडिकल और द फैमिली हिस्ट्री ऑफ अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ like the type 1 diabetes mellitus, like the vitiligo or like the Addison's disease. So these diseases must be present or should be present in the past medical or the family history of the hypothyroidism or the patient of the hypothyroidism. So you may consider this type of history.
And the second thing, he is complaining about the daytime sleepiness and the fatigue. So both the symptoms basically are the features of obstructive sleep apnea, and obstructive sleep apnea is a feature of hypothyroidism. So ये दो हिस्ट्री में हमें जो है वो क्लू मिला है कि जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि इसके भाई को 13 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हुई थी. सो इट मे बी अ केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जो कि हमें क्लू मिला है. देन जो सेकंड थिंग थी कि हाउ विल यू फिजिकली एग्जामाइन द पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, और क्या क्या फिजिकल फाइंडिंग्स आपको मिलेगी जीपी पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेस से शुरू करते हैं. देखिए फेशियल अपीयरेंस, जिस जिस तरह इसकी जो फेशियल अपीयरेंस थी, वो आपको पता है कि इसकी जो ड्राई स्किन की कंप्लेन इसने करी है. हाँ, इसका जो एग्जामिनेशन पर हमें फेस मिला है वो ड्राई और स्केली मिला है. सो दिस इज़ अ फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म में फेस ड्राई हो जाएगा और स्केली हो जाएगा, और पेलारनेस आ जाएगी फेस पर, और मेलर फ्लश भी हमें मिल सकता है, जो कि हमें एसएलई के अंदर भी मिलता है. सो दीज आर द फेशियल फीचर्स जो कि हमें हाइपोथायराइडिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं. दूसरा, एग्जामिनेशन पे हमें ब्रेडिकार्डिया मिलता है, और यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल मौजूद था. ब्रेड इसका जो हार्ट रेट था वो डेफिनेटली 56 पर मिनट इसकी पल्स थी, तो ब्रेडिकार्डिया हमें यहाँ पर मिल रहा है. एंड स्किन पे अगर हम देखेंगे एग्जामिनेशन पे, तो हमें ड्राई स्केली कोल्ड और थिक स्किन मिलेगी, और हेयर्स जो स्काल्प के होंगे वो ब्रिटल होंगे, स्पार्स होंगे, कम होंगे. और अगर हम एपेक्स बीट को लोकेट करना चाहेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लोकेट द एपेक्स बीट, बिकॉज देर विल बी पेरिकार्डियल इफ्यूजन. पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से एपेक्स बीट को लोकेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. और एक जो करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है हाइपोथायराइडिज्म की, वो ये है कि देयर विल बी डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ द एंकल जर्क. एंकल जर्क जब हम परफॉर्म करेंगे तो रिलैक्सेशन उसकी देर से होगी, रिलैक्सेशन फेज थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाएगा. सो मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. दूसरे न्यूरोलॉजिकल फीचर्स हमें एग्जामिनेशन पे मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्पल टनल सिंड्रोम की फीचर्स मिल सकते हैं हमें. सेरिबेलार सिंड्रोम की फीचर्स हमें मिल सकते हैं. हाइपोटोनिया, डिसडाइजोकाइनेसिया एंड पेंडुलर नी जर्क एक्सेट्रा. एंड साइकोसिस हमें मिल सकती है इन दी पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. तो दीज आर द फिजिकल फाइंडिंग्स विच विल लीड टू द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जो कि इस पेशेंट में काफ़ी हद तक मौजूद हैं. Then on investigation, actually you will find the either normocytic or maybe macrocytic anemia, और जो कि इस पेशेंट में भी मौजूद है. एनीमिया 10.3 इसका हेमोग्लोबिन है. और यू मे फाइंड मार्जिनली रेज्ड क्रेटिनिन, जो कि इस पेशेंट में के अंदर भी जो क्रेटिनिन है वो है 125 माइक्रोमोल पर लीटर, और नॉर्मली 7 to 120 होता है. तो क्रेटिनिन के मार्जिनली इंक्रीज़ होने की वजह यह है कि हाइपोथायराइडिज्म में रीनल जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली जीएफआर और फिर जो है वो क्रेटिनिन भी कम हो जाता है. और जो तीसरी फाइंडिंग हमें यहाँ पर मिली है हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, क्योंकि इसमें वेट गेन हो जाता है. हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है और यहाँ पर वेट गेन हो जाता है, तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि इस पेशेंट में भी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जैसे कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 6.4 है, 3.9 to 6.0 नॉर्मल वैल्यू है, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी हमें हाइपोथायराइडिज्म की तरफ लेकर जा रहा है. देन हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट. सो मैनेजमेंट इसकी बहुत आसान है. द गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ दैट यू विल एडवाइस T4 और थायरोक्सिन इन दिस पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. लेकिन एक बात का ख्याल ये रखना है कि आपको थायरोक्सिन विद कॉशन यूज़ करना है इन द पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और मायोकार्डियल डिजीज़, बिकॉज इट मे प्रेसिपिटेट मायोकार्डियल इस्कीमिया. तो ये प्रेसिपिटेशन हो सकती है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की इन्फाक्शन हो सकता है. तो इन द पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आप ज़रा इसे मॉनिटर करके इस्तेमाल करेंगे ईसीजी वगैरह को, कि कोई प्रेसिपिटेशन ना हो जाए एमआई की. सो दिस वाज अबाउट दी हाइपोथायराइडिज्म. एक दूसरी कंडीशन जो होती है, जो एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी है, वो हम उसे कहते हैं मिक्स्ड एडीमा कोमा, जिसमें सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एंड सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाता है. 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है मिक्स्ड एडीमा कोमा में, जो कि मे बी इस पेशेंट में डेवलप हो सकता है आगे जाके अगर ट्रीट ना किया गया तो. लेकिन जो हाइपोथर्मिया होता है उसमें शिवरिंग नहीं होती.
शिवरिंग एबसेंट होती है। हालांकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, इतना नीचे चले जाता है, लेकिन करेक्टरिस्टिकली शिवरिंग इज़ नॉट प्रेजेंट, शिवरिंग इज एबसेंट. So this was all about the hypothyroidism. If you have any question, you can ask in the comments, and please subscribe my channel and share my videos with all other students. Thank you very much, and assalamu alaikum.